જય અવધૂત. આજે મોહિની એકાદશીનો પાવન પર્વ છે. ગત રવિવારે આહવા ડાંગની પાવન ભૂમિ ઉપર વિશાળ જનમેદની સાથે સંતો, મહંતો અને મહાનુભૂતિઓની ઉપસ્થિતિમાં શ્રી ગોરખમચ્છેન્દ્ર મહાદેવ મંદિરનો શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ સુખરૂપે સંપન્ન થયો. સદગુરુના આમંત્રણને માન આપી વિશાળ જનમેદની ભેગી થઈ ખૂબ જ આનંદ અને ગૌરવની લાગણી થાય છે. અને એકવાર આ કાર્યક્રમ માટે જોરદાર તાળી તો બને જ છે. સાચે જ ખૂબ જ સારો મજાનો કાર્યક્રમ થયો. આ રીતે આપણે પૂજ્યશ્રીના દરેક કાર્યક્રમમાં અવશ્ય ભેગા થતા રહેવું જોઈએ. શિલાન્યાસ બાદ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય જોશે ચાલુ થઈ ગયું છે, તો સૌનાથ ભક્તોને વિનંતી છે તેમાં પોતાનું યોગદાન અવશ્ય આપે. પરમ પૂજ્ય શ્રી સાને દાદાના સમાધિ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય પણ ચાલુ છે, તો તેમાં પણ આપણે સૌ કોઈ યોગદાન અવશ્ય આપીશું. બીજી એક ખાસ જાહેરાત છે. શનિ અને રવિવારે બપોરે 3:15 કલાકે યુટ્યુબ ઉપર શ્રી સાનેનાથ બાવની લાઈવ કરવામાં આવશે, તો સૌનાથ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે તેનો લાભ અવશ્ય લે. પરમ પૂજ્ય શ્રી સાને દાદાના પ્રવચનો ફરી એકવાર આપણે લાઈવ સાંભળી શકીશું, તો તેનો લાભ અવશ્ય લે. અન્ન ક્ષેત્રે પણ યોગદાન આવ્યું છે. રમેશભાઈ ખરોલી તરફથી 10 કિલો ટામેટાં, મરચાં અને વેંગણ, કંચનબેન ચૌધરી તરફથી 10 કિલો ચોખા, લીલાબેન ચૌધરી નેવાણિયા તરફથી 10 કિલો રીંગણ, 5 કિલો બટાકા, ભરતભાઈ ડી પટેલ મસાડ તરફથી 20 કિલો કોબીસ, ભાણજીભાઈ જી પટેલ ડુમલાવ તરફથી 1 તેલનો ડબ્બો, કાંતિભાઈ એલ પટેલ ચીખલી તરફથી 17 કિલો ચણા કઠોર, ભીખુભાઈ સી પટેલ અનાવલ તરફથી 40 કિલો ચોખા, ધર્મેશભાઈ એન પટેલ અનાવલ તરફથી 30 કિલો ચોખા, રાજુભાઈ નવસારી તરફથી 24 કિલો ચોખા, લલિતાબેન એલ પટેલ સેલવાસ તરફથી 25 કિલો ચોખા, 2 કિલો મગ અને 2 કિલો તુવેર દાળ, મંજુબેન એમ પટેલ વ્યારા તરફથી 20 કિલો ચોખા, 20 કિલો ઘઉં, પરિમલ બાબુભાઈ પટેલ બોડવાગ તરફથી 3 કિલો ચણા, ચંદુભાઈ ડી ગામિત વ્યારા તરફથી 24 કિલો ચોખા, નામદેવ કોંડીબા વિજલપુર તરફથી 25 કિલો ચોખા અને 10 કિલો તુવેર દાળનું ગુપ્ત દાન આવેલ છે. આજનો ભંડારો નયનભાઈ પ્રવીણભાઈ ગોલતકર નવસારી તરફથી છે, તો આ તમામને સદગુરુદેવ સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પે એવી અભ્યર્થના. તો હવે આજના પાવન પર્વે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ જન્મ સંસાર બંધનાત વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષો મંગલાય તનો હર. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત
अलख निरंजन। हम सबके हृदय में परम व्यापक, परम शक्तिमान एवं जगदीश्वर भगवान विष्णु के स्वरूप में उपस्थित ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सान्यनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ विश्व के कल्याणकर्ता, विश्व के पालक और पोषक और सभी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान ऐसे परमेश्वर श्री भगवान परम विष्णु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। भगवान विष्णु के कृपा सामर्थ्य से ही हमारे मन के विचार, विकार नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करने से यह जीव के जन्म और बंधन के जो फेरे हैं, यह फेरों में से भी जीव मुक्त हो जाता है। और इसीलिए प्रत्येक माह की शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी एकादशी के दिन हम सब भगवान विष्णु का स्तवन, स्तुति, पूजा पाठ और मंत्र आराधना करते हैं। और हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने का तात्पर्य यही है कि जो तत्व सृष्टि के कण कण में बसा है, जल और थल में बसा है, प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में जो विराजमान है और जिनके द्वारा हमें प्रकाश, पानी, अन्न, वायु और हमारे मनुष्य जीवन की या प्राणी मात्र के जीवन की वृद्धि होती है, ऐसे पालक देवता भगवान विष्णु है। तो महीने में 2 बार एकादशी के दिन हमारे शास्त्रों ने हमें पोषण देने वाले देवता भगवान विष्णु की स्तुति और आराधना करने के लिए सूचन किया है। क्योंकि जो हमारा पालन करता है उसकी आवश्यकता और उसकी कृपा हमें हमारे जीवन से लेके मृत्यु तक आवश्यक होती है। और उसकी कृपा जन्म से लेके मृत्यु तक अगर हमारे जीवन पे हो तो ही हमारा जीवन हम यशस्वी रूप से जी सकते हैं। यानी जो जन्म देता है ऐसे ब्रह्मा की आराधना तो करनी ही है। जो हमें मृत्यु से मोक्ष देता है ऐसे देवादिदेव आदिनाथ की भी आराधना हमें करनी है। लेकिन जन्म से मृत्यु के बीच में जो जीवन हमारा जा रहा है, यह समग्र जीवन में यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात्, कि ये जीवन के प्रति क्षण, जीवन की प्रति सांस हमारी भगवान विष्णु के ऊपर आधारित है। अगर वो हमें अन्न दे नहीं, वो हमें पानी दे नहीं, हमें पोषण दे नहीं,
तो यह जीव जो जन्मा है, ये नारायण कैसे बन पाएगा? अगर वो हमारा संवर्धन करे नहीं, तो जो आयुष्य लेके हम नर से नारायण बनने के लिए आए हैं, ये आयुष्य हम यशस्वी रूप से भोग पाएंगे भी नहीं। इसीलिए जन्म संसार बंधनात्, कि जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो संसार हमारे साथ रहता है, वह संसार में प्रति क्षण जीने के लिए भगवान विष्णु के स्मरण की आवश्यकता होती है। और जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे अपने जीवन से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो हमें यहां ही समझना है कि जैसे भगवान आदिनाथ शंकर की महिमा है, वैसे भगवान विष्णु की महिमा हमारे जीवन में प्रति श्वास है। और इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिमान भी बोला गया, उन्हें नारायण भी कहा गया, सभी जीवों में बसने वाले विष्णु भी उन्हें कहा गया। यहाँ तक कि वेदों ने उन्हें विराट पुरुष कहा, कि जो विराट पुरुष हम सबका संरक्षण भी करते हैं, और जो विराट पुरुष हमारे जीवन के ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं। और साथ साथ भगवान विष्णु को सर्वव्यापक देव भी कहा गया। सर्वम खलिदम में वह, यानी सभी में जो बसा हुआ है वो कौन है? तो सभी में जो बसा हुआ है वो ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्म किस नाम से जाना जाता है? तो कहा गया कि सभी में बसा हुआ ब्रह्म वो विष्णु के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो सर्वव्यापक है, जो विराट है, जिसकी सत्ता 14 भुवन में है, और जिनका सामर्थ्य पूरी सृष्टि के भूत, भविष्य और वर्तमान के ऊपर है, ऐसी कोई परम शक्ति हो तो वह परम शक्ति जगदीश्वर वासुदेव भगवान श्री विष्णु की है। और ऐसी शक्ति की उपासना और आराधना हमारे शास्त्रों ने शुक्ल पक्षी एकादशी और कृष्ण पक्षी एकादशी के दिन करने के लिए कहा है। भगवान विष्णु की प्राप्ति कैसे की जाए? एक बार नारद जी ने पूछा था कि भगवान, सभी जीव दुख में है, तो जो सभी जीव दुखी है वो सुखी होने के लिए आपकी प्राप्ति कैसे करे? क्योंकि आपकी प्राप्ति जीव तभी कर सकता है कि जब जीव को पता चले कि आप कहाँ विराजमान हो। आपको किसी से मिलने जाना हो तो उसकी मुलाकात आपको तभी हो सकती है जब उसका एड्रेस आपको पता हो। आप कहाँ निवास करते हो ये अगर आप हमें बता दे तो हमें यह विश्वास हो जाएगा कि हम आपकी प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी आप तो सचराचर में व्याप्त हो। तो जो दुखी जीव है, जो सुखी होना चाहता है, बिना आपकी प्राप्ति के वो सुखी नहीं हो सकता। तो कृपया मुझे बताइए कि आप सर्वव्यापक हो लेकिन कहाँ बसे हुए हो? जहाँ आप बसे हो वहाँ आके, वहाँ पहुँच के, उसके समीप आके हम आपकी प्राप्ति कर सके। विविध प्रकार के व्रत दिए गए हैं, हम व्रत तो करेंगे, लेकिन हमारे व्रत आप जहाँ हो वहाँ तक कहाँ आएंगे? तो निश्चित आपका मुकाम कहाँ है, ये अगर आप हमें बता दो तो हम सब जीव दुख से उगरने के लिए आपकी आराधना करें।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्सि नारदा, कि मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता, बरसों बरसों तक जो साधु सन्यासी तपश्चर्या करते हैं उनके हृदय में भी नहीं मैं निवास करता, लेकिन मेरे भक्त जहाँ प्रेम से, जहाँ भाव से मेरा भजन करते हैं, उस भजन में उनकी भावनाओं में मैं निवास करता हूँ। यह भगवान विष्णु ने कहा। अब आप सोचिए कि जो सचराचर में व्याप्त है वो कहीं ना कहीं से तो प्रकाश देता होगा। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश पूरे सचराचर में व्याप्त है, लेकिन सूर्य कहाँ है उसका एक स्थान तो निश्चित है। चंद्र अपनी शीतलता पूरी पृथ्वी पे देता है, लेकिन जहाँ से वो देता है वो उसका निवास तो निश्चित है। तो विष्णु तो सर्वव्यापक है, कहीं से भी वो हम सभी जीवों का कल्याण करता है, लेकिन जहाँ से वो कल्याण करता है वह स्थान कहीं तो होगा। सूर्य की उपासना सूर्य की ओर पूर्व में देख के अर्घ दे के की जाती है, चंद्र की उपासना चंद्र की ओर देख के की जाती है। तो विष्णु की उपासना कहाँ देख के की जाए? आप कहाँ हो? कहीं से तो आप हमें कृपा देते होंगे। और तब भगवान ने कहा कि मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, मैं जो योगी तपश्चर्या करते हैं उसके हृदय में भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे भक्त, मेरे भोले भाले भक्त जहाँ बैठ के भजन करते हैं उस भजन के भाव में मैं समाया हुआ हूँ। अब आप देखिए कि भगवान अव्ययी हो गए। किसी एक स्थान पे होते तो अवयव के रूप में होते, आकार के रूप में होते, प्रत्यक्ष रूप में होते, लेकिन भगवान ने क्या कहा? जो भक्त भजन गाते हैं उस भजन के भाव में मैं हूँ। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्सि नारदा, कि मेरे भक्त जहाँ भजन गा रहे हैं वो भजन में भी नहीं, उस भजन के भाव में मैं समाया हुआ। यहाँ भगवान निराकार हो गए, यहाँ भगवान भावात्मक हो गए, यहाँ भगवान अव्ययी हो गए, यहाँ भगवान निरालंबन हो गए। भगवान के पाने का कोई आधार ही नहीं रहा। हाँ, भजन आधार है, लेकिन भाव से गाया हुआ भजन उसका आधार है। हम यहाँ हर गुरुवार पे भजन गाते हैं, तो आप सब भी धीरे धीरे भजन जैसे आते हैं वैसे आप गाते हो, लेकिन गाने के लिए गाते हो वो भगवान की प्राप्ति का आधार नहीं। यहाँ जब भजन गाया जाए तब आप गाओ, लेकिन भाव से जहाँ गाओ वो भाव भगवान की प्राप्ति का आधार होता है। यानी भगवान निरालंबी है। भगवान को पाने का कोई आधार ही नहीं रखा। भगवान आधार भी ऐसा रखा है निराकार, भावना के रूप में भगवान ने अपनी प्राप्ति का एक आधार रखा है। और इसीलिए भगवान विष्णु का एक नाम हुआ भावन। भावन का अर्थ जो भाव से जिसकी प्राप्ति हो पाए वो होता है भावन। एक नाम है उसका भावन। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए। अब हम यहाँ सोचते हैं कि भगवान कैसे शबरी के जूठे बेर खा सकते हैं। शबरी ने जब उन्हें जूठे बेर दिए, इस बेर में शबरी की भावना समाई थी। भगवान ने बेर को नहीं खाया, भगवान ने शबरी के भाव को प्राशन किया, भगवान ने शबरी के भाव को चखा है। शबरी में जो भाव था, शबरी के भाव से भगवान ने उसके जूठे बोर खा लिए। तो यहाँ आप समझिए
कि शबरी कोई पूजा जप तप करती नहीं थी, लेकिन वर्षों से यस्य स्मरण मात्रे न उनका स्मरण कर रही थी कि कभी तो राम आएंगे। और जब राम आ गए, राम ने तो कहा ही नहीं कि कौन सी तिथि पे आएंगे। जब उन्होंने कहा नहीं कौन से दिन आएंगे, तो कभी भी किसी भी दिन किसी भी क्षण भगवान आ सकते हैं। अगर भगवान आ गए तो मैं उनका सत्कार कैसे करूंगी। शबरी प्रतिदिन भगवान के आने की प्रतीक्षा में भगवान के आसन की व्यवस्था, भगवान के शयन की व्यवस्था, भगवान के सत्कार की व्यवस्था, भगवान भूखे न रहे इसीलिए वन्य भोजन की व्यवस्था वो करती गई। और एक दिन जब भगवान आए तो वन्य भोजन के रूप में जूठे बेर थे। शबरी ने ये बेर जूठे क्यों रखे कि जब भगवान मेरे घर आए तो उसे फल भी मिले तो वो फल भी मधुर मिले, कोई फल कड़वा या खट्टा न मिले। ये उसकी भावना थी कि मेरे भगवान को मैं खट्टा न खिलाऊं, मेरे भगवान को मैं मीठा खिलाऊं। लेकिन ये फल मीठा है कैसे पता चलेगा, तो लाओ मैं चख के देख लेती हूँ, चखा हुआ बेर में भगवान को खिलाऊं। भगवान ने भावना से उसके बेर को आरोगा। तो आप देखिए भगवान कहाँ जाके बसे, शबरी के बेर में नहीं। शबरी की भावना में स्मरण मात्रेण, इतने सालों से जो उस शबरी स्मरण करती थी, इस भावना में जाके भगवान बसे। दुर्योधन ने भगवान को बुलाया था कि आओ हमारे कक्ष में आज का भोजन आप हमारे यहाँ करेंगे। 56 भोग लगाए गए थे। भगवान आने के लिए निकले, विदुर जी ने बुलाया, भगवान ज़्यादा नहीं 2 क्षण के लिए आ जाओ। भगवान विदुर जी को मिलने के लिए गए। जैसे विदुर जी को मिलने के लिए गए, वहाँ प्रेम का आदान प्रदान हुआ और विदुर जी ने भगवान को खिलाने के लिए भाजी रखी कि मेरी स्थिति तो कुछ ज़्यादा खिला सको ऐसा नहीं है, आप तो 56 भोग खाएंगे तो मेरे घर पे आए हैं, कुछ तो लीजिए। और भगवान ने विदुर की भाजी खाई और पेट भरते हुए खाई और कह दिया जब दुर्योधन के घर गए कि दुर्योधन तूने 56 भोग तो रखे हैं, लेकिन मुझे विदुर ने आग्रह किया और उसकी भाजी मैंने खा ली है, तो ये तेरे 56 भोग मेरे उदर तक नहीं जाएंगे। मैं पहले से ही विदुर के घर से उसकी भावना से तृप्त होकर आया हूँ। अब आप देखिए कि हम भगवान को पूजा में 56 भोग धराते हैं, शायद 56 भोग एक अहंकार का प्रतीक होगा, 56 भोग हमारी वासना का प्रतीक होगा। इसलिए 56 भोग को धराने के लिए बोल दिया कि जितने हमारे मन के भाव है वो भगवान को दे दिए जाए। लेकिन भगवान 56 भोग से भी ज़्यादा हमारे अंतर से प्रेम से दिए हुए भाव को ही भगवान स्वीकारते हैं। और भगवान ने विदुर जी की भाजी को स्वीकारा। तो आप देखिए कि परमेश्वर की प्राप्ति केवल और केवल भावना से ही होती है। आपके अंदर से जो भाव है उसी से होती है। लेकिन भाव भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे सात्विक भाव होता है प्रेम भाव। भगवान प्रेम भाव से आपकी भावना का स्वीकार करते हैं। भगवान कहाँ बसते हैं, तो भगवान प्रेम भाव से आपने रखी हुई आपकी भावना के अंदर भगवान विराजमान होते हैं। और जहाँ भगवान भावना से विराजमान हो, समझ लीजिए कि वहीं उसी भावना से भगवान का इस भुवन में प्रागट्य हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान की भक्ति भावना से करें। एकादशी के दिन भगवान के मंत्र जाप गिन के नहीं, अनगिनत भावना से करें। हम गिनते हुए मंत्र जाप करते हैं कि आज मैंने 10 माला की। यह 10 माला गिनना यानी ये भाव नहीं है, यह आडंबर है। भगवान हमें देता है वो कभी तोल माप के नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान हमें देता है। भगवान देखिए, भगवान ने हमें बुद्धि दी, माप की नहीं दी, अमाप बुद्धि दी है। हाँ, हमारी बुद्धि का उपयोग शायद हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं,
या योग्य रूप से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, अमाप दी है। भगवान ने जो हमारी भुजाओं में बल दिया है, अमाप बल दिया है, अतुलित बल दिया है। हाँ, हमारे बल का उपयोग शायद हम योग्य रूप से नहीं कर पा रहे। भगवान ने हमें दृष्टि दी है, अमर्यादित दृष्टि दी है। यहाँ से आप देखिए, हम सूर्य को देख सकते हैं। यहाँ से, पृथ्वी से सूर्य 1000 योजन दूर है, लेकिन हम अगर सूर्य को देख सकते हैं तो हमारी दृष्टि 1000 योजन तक जाने वाली दृष्टि। इतनी दूर जाने वाली दृष्टि होते हुए भी हम कभी ज़्यादा दूर का नहीं सोच पा रहे। शायद यही हमारी त्रुटि है। भगवान ने हमें इतनी सुंदर वाणी दी है, जिस वाणी से हम अगर किसी का सत्कार करें तो वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अपना बन सकता है। लेकिन शायद आज तक हमने, भगवान ने जो हमें वाणी दी, उसका योग्य उपयोग हमने आज तक नहीं किया। भगवान ने हमें कान दिए कि हम अच्छे से अच्छा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने और श्रवण करते हुए सब सीखे। लेकिन हमारी प्रशंसाओं के सिवाय हमारे कान को कुछ पसंद ही नहीं है। हमने हमारे कान को एक मर्यादाओं में बांध दिया है। यानी भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है, और जितना हमें दे दिया है, अमाप दिया है। लेकिन शायद जो भगवान ने हमें अमाप दिया है, उसका उपयोग आज तक हम कर पाए, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग से नहीं कर पाए। उपयोग तो सबने किया है, अपने लिए किया है, लेकिन जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग आज तक हम नहीं कर पाए। इसलिए एकादशी के दिन आप जप करें, भाव से करें। एकादशी के दिन आप स्नान करें, भाव से करें। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करें, भाव से करें। एकादशी के दिन उपवास करें, भाव से करें। एकादशी के दिन सबके साथ बातचीत करें, भाव से करें। जितना आप भाव से करोगे, आपकी भावना में भगवान प्रकट होगा। यानी जो आए उसे भावना से उसके साथ व्यवहार करें। एकादशी का महत्व केवल और केवल साधना करना नहीं है। एकादशी का महत्व केवल और केवल उपासना करना नहीं है। एकादशी का अर्थ भगवान की आराधना करना है, और वही आराधना कहलाती है जिसमें भाव हो। साधना में आराधना न हो तो साधना साधन बन जाती है। साधन यानी वस्तु बन जाती है, जड़ वस्तु बन जाती है। आप माला करो, ये आपका साधन है। यह माला में आराधना न हो तो ये माला क्या बन जाएगी? ये माला केवल साधन बन जाएगी, आपको दिखने वाला साधन। जो आप भजन करो, और भजन में आप अगर भाव से आराधना, आपकी आराधना भजन के साथ न करो, तो यह भजन केवल और केवल आडंबर रह जाएगा। यानी आप जो भी कुछ करो, साधना में आराधना न हो तो साधना साधन बन जाती है। उसी प्रकार उपासना में भी आराधना होनी चाहिए। उपासना में आराधना न हो तो उपासना अपवास बन जाती है। उपासना अपवास नहीं होनी चाहिए, उपासना आराधना होनी चाहिए। आज हम एकादशी के दिन उपवास करते हैं। उपवास हमने दो अर्थों में लिया है। उपवास यानी भूखा रहना, उसका अर्थ है अपवास, उसको हम अपवास बोलते हैं। और भगवान के समीप से समीप बैठना, जाने की कोशिश करना, उसे कहते हैं उपवास। हम शब्द उपवास बोलते हैं, लेकिन करते हैं हम अपवास। आपके उपवास में आराधना न हो, भावना न हो, तो वो उपासना अपवास बन जाती है।
वो उपासना खाली रह जाती है। जैसे पेट खाली रहता है, वैसे आपकी उपासना खाली रह जाती है, आपकी उपासना कोरी रह जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन उपासना में भी आराधना चाहिए, साधना में भी आराधना चाहिए। अगर उपासना में और साधना में आराधना रही तो आपने जो भी कुछ किया ये सब कुछ भक्ति भाव बन जाएंगे, भावना भक्ति बन जाएगी, और उसी का स्वीकार भगवान वहीं उसी स्थान से कर लेते हैं। आज का दिन है मोहिनी एकादशी, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का अर्थ, मोहिनी का अर्थ होता है आकर्षण, मोहिनी का अर्थ होता है संमोहन। तो हमने सोचा है कि मोहिनी एकादशी पे जो हम उपवास व्रत करें तो हमें मोहिनी प्राप्त होगी। मोहिनी प्राप्त होगी तो क्या होगा, सब लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, हमारे द्वारा सब लोग सम्मोहित होंगे, और हमारे द्वारा जब सब सम्मोहित होंगे तो हमारे जीवन में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमें सब कुछ प्राप्त होगा। ये हमने अर्थ निकाला, मोहिनी यानी सबको मोहित कर देने वाली। लेकिन मोहिनी एकादशी का मेरे हिसाब से एक अर्थ होता है, मोहिनी का अर्थ होता है मोहिनी, यानी जो हमें सभी प्रकार से के मोह से मुक्त कर दे, उसे कहा जाता है मोहिनी। यहाँ नी का अर्थ लेना है, नहीं मोह नहीं। मोहिनी एकादशी का अर्थ होता है मोह नहीं। हमारे अंदर से सभी प्रकार के मोह जहाँ नहीं बन जाए, जहाँ हम मोह को नहीं स्वीकारे, ऐसी जो एकादशी है वो है मोहिनी एकादशी, के सभी प्रकार के मोह से जो हमें शून्य कर दे, मुक्त कर दे, हमारे अंदर से जो मोह निकाल दे, ऐसी एकादशी वो होती है मोहिनी एकादशी। देखिए, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मोह हैं, हमारा जीवन ही मोहमय बन चुका है। हम आए थे उसकी प्राप्ति के लिए, हम आए थे नारायण बनने के लिए, हम आए थे सहयोगी बनने के लिए। लेकिन जन्म लेने के बाद हमारे मानस में मोह के रूप में एक ऐसा भाव जग गया, ऐसा एक विकार जगा कि जिस विकार के कारण हम भ्रमित हो गए। जब हमारे मन को मोह लगता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जहाँ बुद्धि भ्रमित हो जाती है वहाँ हमारा वर्तन भ्रष्ट हो जाता है। यानी आने के बाद ऐसे मोह में हम पड़े कि जो मोह केवल और केवल हमारे नाश का कारण था, जो मोह केवल और केवल हमारे मृत्यु का ही कारण था, हमारे मोक्ष का कारण नहीं बना। तो मोह हमारे भीतर की एक षड्रिपु है, मोह हमारे भीतर का एक आविर्भाव है, मोह हमारे भीतर की एक ऐसी भावना है जो भावना हमें पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम करने के लिए प्रेरित करती है। और ये मोह लगता किसे है? तो यह मोह लगता है इस जीव को। जो जीव आता है जन्म संसार बंधनात्, बंधन में पड़ जाता है। ये बंधन ऐसा है जो किसी ने बांधा नहीं है, हम स्वयं उस बंधन में बंधे हैं। जन्म तो लिया जीव ने, लेकिन जन्म संसार, ये संसार के मोह जाल में हम फंस गए या हम खुद बंध गए। और ऐसे हम बंध गए कि अब हमें वहां से छूटने की कोई इच्छा ही नहीं। जीव क्यों पुनः पुनः जन्म लेता है? मोह के अधीन जन्म लेता है। आपने देखा होगा
कि एक पंछी डाल पे अपना माला बनाता है। पंछी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसका पोषण जो नर मादा पक्षी होता है वो करता है। अब जब बच्चे बड़े बन जाए तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम उड़ने लगे, तो उड़ते हैं, वापस माले में आ जाते हैं, फिरते हैं, माले में आ जाते हैं। जब वो पक्षी के बच्चों को ऐसा होता है कि अब मैं उड़ने लगा हूं, तो पंछी क्या करता है, माले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उड़ जाने की कोशिश करता है, और इतना दूर उड़ जाने की इच्छा रखता है कि वापस ये माला में वो ना आए। लेकिन आप बराबर ध्यान से कभी देखना, एक पंछी जो छोटा बच्चा होता है, वो जब बच्चा पंछी बन जाता है तो उस पंछी को माले की माया छोड़ते छोड़ते कम से कम 7 से 8 दिन लग जाते हैं। पंछी माले के बाहर जाता है, इधर उधर घूमता है, वापस आ जाता है। एक दिन ऐसा करता है, दूसरे दिन और थोड़ा आगे जाता है, वापस माले में आ जाता है, तीसरे दिन और थोड़ा आगे जाता है, वापस माले में आ जाता है। बार बार उस माले को वो छोड़ना चाहता है, लेकिन कितने दिनों तक थोड़े दूर जाके वापस उसमें आके बैठ जाता है। उसका मन कहता है माला छोड़ दूं, इस बंधन को मैं छोड़ दूं, ये माले के मुंह को मैं छोड़ दूं, मैं कहीं और चला जाऊंगा तो दूसरा माला बना दूंगा, लेकिन यहां से इस माले को मैं छोड़ दूं। 7 से 8 दिन तक वो नहीं छोड़ पाता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे करके उस माले को वो छोड़ देता है और गगन में उड़ के किसी और वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। वहां भी ज्यादा नहीं बैठता, थोड़े दिन बैठता है, उस माया को भी वो छोड़ देता है। तो आप सोचिए कि एक माले में रहते हुए पंछी को माला छोड़ते छोड़ते 7-8 दिन लग जाते हैं। आप कभी ऑब्जर्वेशन करना पेड़ के नीचे बैठ के, कि पंछी उड़ता नहीं, आता है बैठ जाता है, आता है बैठ जाता है, कितने दिनों तक ये चलता है। माले का मोह जल्दी छूटता नहीं। ठीक वैसा ही हमारा हो गया है कि जीव आया तो था, लेकिन संसार मोह बंधनात्, जन्म के बाद संसार के मोह बंधन में ऐसे पड़ा है कि वहां से छूटा ही नहीं जा रहा। हमारे 4 प्रकार के वर्णाश्रम कर दिए, संन्यास आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानस्पत्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, लेकिन हम आज भी उम्र के हिसाब से जीते तो हम गृहस्थ आश्रम में ही। गृहस्थ आश्रम के बाद वानस्पत्य आश्रम होता है, जहाँ सब जवाबदारी सौंप के अपने कक्ष में बैठ के भजन भक्ति करे, जरूरत पड़े तो बच्चों को समझाए। लेकिन वहाँ भी नहीं, कहते हैं वानस्पत्य आश्रम में जीते हैं, लेकिन अभी भी आप गृहस्थी में ही जीते हो। आपके बच्चे के बच्चे रोते हैं तो पहले आप डांटोगे, अरे इसको क्यों रुलाते हो, कहाँ हो गया वानस्पत्य आश्रम। बाद में संन्यास आश्रम तो कभी जीवन में आता ही नहीं। तो हम ऐसे बंधन में फंसे हैं कि जहां से मुक्ति का कोई कारण ही नहीं, और जहां मोह लगता है वहां समझ लीजिए कि सबसे पहले मोह लगता है आपकी बुद्धि को, मन को। जब मन को मोह लग जाए तो बुद्धि भ्रमित होती है। बुद्धि जब भ्रमित हो जाए तो बुद्धि इंद्रियों को कहती है कि जाओ वो करो, और इंद्रिया एक बार वो कर ले, बाद में वो इंद्रिया उसी वस्तु की आदी हो जाती है, हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए मोहिनी एकादशी हमारे जीवन के अनेक प्रकार के मोह को मुक्त करने की एक व्यवस्था है। हमारे जीवन में सबसे पहला मोह होता है काम मोह। हम सभी के हृदय में काम वासना है, हमारे उत्पत्ति ही काम से हुई है। हम उत्पन्न कब हुए? जब हमारे माँ बाप ने सोचा नहीं है कि हमें संतति पैदा करनी। 2 पात्रों के बीच में जब काम पैदा हुआ, उस काम की तृप्ति करते करते हमारी उत्पत्ति हुई है, यानी हम काम पिंड है। हमारा मूल स्वभाव ही काम है, और जहां हमारा मूल स्वभाव काम है,
हम काम से ही पैदा हुए हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि काम हमारे जीवन में अविरत रहेगा। और इसलिए कहा गया काम क्या है? अग्नि है। काम कैसा अग्नि है? जठर का अग्नि, जठराग्नि जैसा अग्नि है, कामाग्नि। ये अग्नि कैसा है? तो ये अग्नि ऐसा है जो सब कुछ स्वाहा कर लेता है। लेकिन ये काम अग्नि कभी शांत नहीं होता, और इसीलिए कहा गया कि काम अग्नि भूख के जैसा अग्नि है। जब पेट में भूख लगे तो खाना खाने से भूख शांत तो होती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, एक समय के। शाम आती है, वापस भूख पैदा होती है, वापस खाना डाल दिया, भूख शांत हो जाती है, लेकिन कल पाछी आएगी, पुनः पुनः वो आएगी। तो भूख किसे कहा जाए? निश्चित समय के ऊपर जो वापस आवे वो भूख। खाना डालने से जो शांत हो जाए लेकिन वापस वो आए, वो भूख। तो ये काम क्या है? भूख। कि काम की तृप्ति केवल और केवल शरीर के संबंधों से ही तृप्त की जाती है, और शरीर से संबंधों से काम को नियंत्रण मिले, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने लग्न प्रथा अस्तित्व में लाई कि काम तो सब में है, काम की भूख लगेगी उम्र के हिसाब, और जब परिपक्व उम्र में वो भूख लगेगी और उसको आहार भी मिल जाए, लेकिन बार बार उसकी इच्छा होती रहेगी, तो व्यक्ति भटक जाएगा, विलासी बन जाएगा। तो व्यक्ति विलासी न बने, उसका नियंत्रण करने के लिए लग्न व्यवस्था अस्तित्व में आई कि धर्म निर्धारित करे कि ये पात्र इसके लिए उचित है, और सबकी सम्मति से शादी हो जाए, तो काम तृप्ति की सबसे व्यवस्थित व्यवस्था शादी के रूप में हम सबके बीच में अस्तित्व में आई है। अब आप देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सूक्ष्म सोचा कि काम मोह तो सबको होगा, पशुओं को भी होता है काम मोह। दुनिया का कोई भी व्यक्ति काम के मोह से मुक्त नहीं। काम का मोह क्या अर्थ है? वासना, शारीरिक वासना से कोई मुक्त नहीं। हाँ, धीरे 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 एक तपश्चर्या होते होते उससे मुक्त हुआ जाता है, लेकिन शरीर की वासना से कोई मुक्त नहीं होता। और इसीलिए धर्म ने निर्धारित कर दिया कि ये स्त्री तुम्हारी है, ये पत्नी है, और ये पुरुष तुम्हारा है, ये पति है। आज से तुम दोनों काम तृप्ति कर सकते हो मान्यता से, समाज के मान्यता से। और दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए निर्धारित किए जाए, उसके बाद में संसार की सबसे पहली शुरुआत उसी दिन से काम तृप्ति से ही होती है। अब देखिए, तो सबसे पहला मोह क्या है? काम मोह। अगर काम मोह की व्यवस्था ही न हो तो व्यक्ति पशुओं के जैसा भटक जाएगा, भोग विलासी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, विकृत बन जाएगा। इसीलिए जीवन का सबसे पहला मोह, स्वभावगत मोह, प्राकृतिक मोह, जिसे कहा जाता है काम मोह। और ये काम मोह निर्धारित रूप से है, धर्म के रूप से है, मान्यता से किया गया है, तो हमारे जीवन को परिवार के रूप में वो पलटेगा, हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा, हमारे मानस को वो स्थिर करेगा। लेकिन ये काम मोह अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हम सबके जीवन को वो नष्ट करेगा, सबसे ज़्यादा खुद के जीवन को वो नष्ट करेगा। इसलिए काम अनिवार्य है, काम तृप्ति वर्ज्य नहीं है, जरूरी है, लेकिन जो नियम बताए गए हैं उसी हिसाब से वो जरूरी है। तो जीवन का सबसे बड़ा मोह होता है काम। जिसमें काम हो, जिसमें विकार हो, जिसमें दैहिक वासना तृप्त करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रबलता हो, उसे अपने जीवन में काम तृप्ति की
करने के लिए छूट है, लेकिन शास्त्रों ने बताया उस व्यवस्था से उसे छूट दी गई। और जहाँ वो नियंत्रण में न हो तो वहाँ जीवन का सर्वनाश होता है। रावण की रानियाँ अनेक होगी, फिर भी रावण जाके सीता को उठा के लाता है। क्यों लाता है? सिर्फ वहाँ उसको देखने के लिए नहीं, काम तृप्ति। और काम तृप्ति के लिए जब उसने सीता को उठा लिया तो आप देखें रामायण हुआ, रावण का पतन उसी में हो गया। मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, जितने भी मुगल बादशाह थे ये सब अय्याश थे। जितने भी मुगल बादशाह थे ये सब कामी थे। जैसे जानवर में काम होता है वो तो नियंत्रण में रहता है, लेकिन ऐसे जो मुगल बादशाह थे वो जानवर से भी बदतर थे। इन मुगल बादशाहों ने किया क्या? सबसे पहले हमारे मंदिरों को नष्ट किया। मंदिरों को नष्ट करने के बाद राजाओं को नष्ट किया। राजाओं के राज्य ले लेने के बाद राजा की जितनी रानियां थी उनको उन्होंने अपनी भोग विलास का साधन बनाया। और बाद में उनका दमन करते हुए, सब व्यक्तियों का दमन करते हुए अपने राज्य, अपने शासन की स्थापना की, अपने धर्म की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी कि रानी पद्मावती के रूप का वर्णन सुनते ही वो मोहित हुआ। और बाद में रानी पद्मावती के पति जो थे उसके ऊपर, उसके राज्य के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। क्यों? कि मुझे पद्मावती को देखना है। और पद्मावती को देखने के लिए अलग व्यवस्था की गई कि आईने में उसका मुंह दिखाया, वो तालाब में प्रतिबिंब पड़ता था, उस प्रतिबिंब में उसने देखा और उसको बाद में लगा कि नहीं, उससे तो मुझे पाना है। देखिए, लोभ लगता है तो इच्छा पैदा होती है, लेकिन जहाँ मोह लगता है तब प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाती हैं कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और आक्रमण किया, राज्य का ध्वंस किया पद्मावती को पाने के लिए। लेकिन पद्मावती ऐसी सती स्त्री थी जिसने अपना रक्षण करने के लिए, धर्म का रक्षण करने के लिए वो अग्निकुंड में वो समर्पित हो गई। अब आप देखिए कि एक काम तृप्ति के पीछे कितने संग्राम हो गए और ऐसे राजाओं का खुद का पतन भी हो गया। तो काम तृप्ति मान्य है, लेकिन धर्म ने जो बताया है, धार्मिक मान्यता के अनुसार काम तृप्ति हमारे धर्म में भी मान्य है। तो सबसे पहली होती है काम तृप्ति, काम मोह। दूसरा मोह होता है धन मोह, कि धन हम सब कमाते हैं, कमाने के लिए किसी को ना नहीं, लेकिन धन अन्याय से नहीं, न्याय से कमाया जाए। धन का उपयोग करने की सबको छूट है, पर धन का उपयोग ऐसा नहीं जो धन का उपयोग आपके घर में रोग लेके आए, जीवन का नाश लेके आए। यानी धन कमाना जरूरी है। धन इतना तो जरूर कमाना चाहिए कि जिसके हमारी आवश्यकता के लिए हमें दूसरों के पास जाना न पड़े। उतना धन तो हमें सबको जरूर कमाना चाहिए, ज़्यादा भी कमाना चाहिए, लेकिन अनीति से नहीं, नीति से। धन ज़्यादा कमाने का मोह हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है और हमें भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। आज पूरे विश्व में भ्रष्टाचार व्यापा कैसे? धन के मोह से, कि जितना मिलता था उससे भी अधिक चाहिए, और जो धन मुझे मिलता है उसका उपयोग मैं मेरी इच्छा तृप्ति के लिए करूंगा। ये भावना जब जग गई तो भ्रष्टाचार वहां से शुरू हुआ। कोई भी काम अटका हो, लांच दे दो, पैसा लेने के बाद वो काम हो जाता है। ये क्या है? धन मोह। यानी धन कमाना योग्य है, जैसे काम वासना की तृप्ति योग्य है लेकिन नियम से, वैसे धन कमाना योग्य है लेकिन न्याय से। अन्याय से आप जो भी कुछ कमाओगे, यह अन्याय से आया हुआ धन अशांति, रोग और जीवन में कलह का कारण बनेगा। इसलिए दूसरा मोह होता है धन का मोह। तीसरा मोह होता है कुटुंब का मोह।
हमारे पास परिवार है, परिवार के बिना कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं कहलाता। माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, पुत्र हो, हाँ कोई एक चीज़ न हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कुटुंब से जन्मा है। प्रत्येक व्यक्ति को बनाने वाला, मानव को बनाने वाला ही परिवार होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, स्वाभाविक है कि परिवार के ऊपर उसे मोह हो, लेकिन परिवार के ऊपर का ऐसा मोह कोई काम नहीं जो मोह परिवार में किसी को अयोग्य रूप से दिया जाए। यानी दो संतान हो, दो संतान है, परिवार है, दोनों संतानों के प्रति प्रेम है, अभी संपत्ति बांटनी है तो मोह है, लेकिन मोह क्या करेगा? किसी एक को ज़्यादा देगा, एक को कम देगा। अपने आप व्यक्ति सोचेगा कि मेरे दोनों लड़के हैं, दोनों मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन ये जो बड़ा है, ये बड़ा जो है वो मेरा कहाँ कम मानता है, छोटा ज़्यादा मानता है, तब जब मैं दूंगा तो उसको दो चीज़ ज़्यादा दूंगा, इसे एक चीज़ कम दूंगा। ये क्या हो गया? पारिवारिक मोह। आप तो वो करके चले जाएंगे, लेकिन जो समान रूप से आपने नहीं किया, असमानता से जो आपने किया है, उसका कारण क्या होगा? आपके जाने के बाद कोर्ट होगी, आपके जाने के बाद कलह होगा, आपके जाने के बाद संबंध टूट जाएंगे। तो इसे कहते हैं पारिवारिक मोह। अपने ही सब है, लेकिन किसी पे ज्यादा मोह हो जाए तो परिवार का संतुलन उसमें बिगड़ जाता है। और इसलिए कहा गया कि जो सत्ताधीश होता है उसको अगर सत्ता चलानी है तो परिवार से मुक्त होकर चलाए। जिसके पास सामर्थ्य होता है उसे अपने सामर्थ्य का उपयोग करना है तो योग्य को सामर्थ्य दिया जाए, ना कि परिवार को सामर्थ्य दिया जाए। जहां परिवारवाद हो जाता है वहां राजा महाराजाओं के राज्य भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि परिवारवाद जहां होता है वहां पात्रता नहीं देखी जाती। पात्रता परिवार से मुक्त होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के जो राजा थे वो पारिवारिक थे, और राज्य का शासन जो चलता था वो परिवार में ही दिया जाता था। जो बड़ा है उसे दे देना चाहिए, बड़ा है उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़ा योग्य नहीं हो तो नहीं, लेकिन जो बड़ा है उसे दे देना चाहिए। उसमें क्या हो गया? ऐसे ऐसे राजा मिले कि जो इस राजा में सामर्थ्य ही नहीं था। तो जहां ये सब हो जाता है, ये परिवार का मोह, परिवार का जहां मोह लगता है वहां समानता चली जाती है, और जहां समानता चली जाती है वहां विवाद पैदा होता है। महाभारत की कहानी क्या है? यही तो है कि राज्य का योग्य अधिकारी तो युधिष्ठिर था, कायदे से भी युधिष्ठिर था, लेकिन जब तक ये बड़े हो जाए तब तक वो काम धृतराष्ट्र को करना था। धृतराष्ट्र गादी पे बैठा, अपने पुत्र में मोह था, तो धृतराष्ट्र ये नहीं कह पाया कि ये राज्य युधिष्ठिर को मिले। धृतराष्ट्र ने यही कहा कि मैं जो राज्य पे बैठा हूं, मैं राजा हूं, तो मेरे बाद मेरे बेटे को मिले, उनको नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा तो मैं हूं। तो दुर्योधन में जो मोह लगा, तो दुर्योधन की तो पात्रता ही नहीं थी कि पूरे राज्य को चला सके, क्योंकि दुर्योधन शकुनी की बुद्धि से जीता था। मंथरा की बुद्धि से जो जले वो कई, और शकुनी की बुद्धि से जो चले वो दुर्योधन। जो आटલું તમે યાદ રાખજો, તમારા ઘરમાં બી જે સ્ત્રી કોઈ બીજાના કહેવાથી ચાલે તે કઈ થઈ જાય પછી, અને જે પુરુષ બીજાના કહેવાથી ચાલે એ दुर्योधन बने પછી। हमारे पास जो है उसका हम विचार नहीं करते, दूसरों के कहाँ से चलते। तो पात्रता तो वो होती है जो खुद सोचे और खुद करे। तो पारिवारिक मोह लगा और दुर्योधन को राज्य मिलना चाहिए, ये जब धृतराष्ट्र के मन में रहा तो उसका परिणाम क्या हुआ? युद्ध, विश्व युद्ध हुआ। और ऐसा विश्व युद्ध हो गया जिसमें जिसके प्रति मोह था वो ही उस पर चला गया। तो ये पतन का कारण बना धृतराष्ट्र का मोह। हमारे आध्यात्म में भी ये व्यवस्था है कि आध्यात्म में जो महंत होते हैं, अध्यात्म में जो गुरुजन होते हैं,
ये जब संसार से मुक्त हो तो अपने उत्तराधिकारी में पारिवारिक रूप से नहीं देखा जाता, पात्रता के रूप से अपने शिष्यों को सौंपा जाता है। शंकराचार्य की परंपरा को देख लीजिए, शंकराचार्य ने कोई परिवार पैदा नहीं किया, शिष्यों को परिवार बनाया और उसमें जो उचित था उसी को उसने दिया। तो आज भी ये हमारी सनातन परंपरा आज भी चालू है। तो परिवार का जो मोह होता है अच्छा है, जरूरी है कि परिवार साथ में हो, लेकिन जब आप आपके जीवन में किसी एक पे ज़्यादा मोह कर दो तो बाकी को अन्याय हो जाए तो वो परिवार का, हो पुत्र का या जो भी है उसका मोह सबके लिए विखवाद का कारण बनता है। बाद में होता है प्रतिष्ठा का मोह। एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए, बाद में वो प्रतिष्ठा किसी को गंवानी नहीं। सबको अपनी अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी है, और जहाँ प्रतिष्ठा की पड़ी हो, प्रतिष्ठा में सत्ता से प्रतिष्ठा आती है, लेकिन सत्ता चली जाए फिर भी प्रतिष्ठा का मोह जाता नहीं। ये प्रतिष्ठा जो होती है ये सत्ता के आधार से मिलती है, यानी प्रतिष्ठा का मोह। हाँ, प्रतिष्ठा का मोह रखे ये ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रतिष्ठा का मोह सत्य से विपरीत हो जाता है। सत्य से जहाँ विपरीत हो जाए प्रतिष्ठा, और जहाँ प्रतिष्ठा को ही संभालने सोचा जाए वहाँ सत्य का अस्वीकार होता है और वहीं जीवन में समस्या पैदा होती है। अब देखिए, कुंती को मंत्र दिए गए कि तुम्हें मंत्र से पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। कुंती ने सोचा कि लाओ देखती हूँ, सूर्य के मंत्र का जाप करती हूँ, मुझे पुत्र पैदा होता है कि नहीं होता। वो तो राजरानी थी। कुंती जब कुंवारी थी तभी कुंती माता ने सूर्य मंत्र का आवाहन किया, और सूर्य मंत्र के कारण, मंत्र शक्ति के कारण कुंती को एक गर्भ रह गया। दिन प्रतिदिन वो गर्भ बड़ा होने लगा। अब कुंती को चिंता हुई कि जो गर्भ मेरे पेट में पल रहा है उसमें जो बच्चा होगा मैं तो कुंवारी माता बन जाऊंगी, समाज क्या कहेगा, मेरी प्रतिष्ठा, जो राज्य की जो प्रतिष्ठा है उसको हानि होगी, मैं क्या करूं। बच्चे को पैदा किया, और बच्चे को पैदा करने जो सत्य था, बच्चे को पैदा करने के बाद उसी को जल में बहा दिया गया और वो बाद में कर्ण बनता है। अब आप देखिए, सत्य तो था कि उसका ही लड़का था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कुंती ने जो सत्य था उसको नहीं स्वीकारा, और जिसका भी आचरण किया वो आचरण पाप कहलाया बाद में। और पूरी जीवन भर वो जो भोगता वो कर्ण ने भोगता, प्रत्येक क्षण क्षण पे। कुंती बचती गई प्रतिष्ठा के डर से कि प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जिसने भोगता वो कर्ण ने भोगता। तो प्रतिष्ठा का मोह कभी कभी सत्य से विमुख हो जाता है, और जहाँ वो सत्य से विमुख हो जाए वहाँ अधर्म हो जाता है। जहाँ प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप सत्य को दूर कर दो, सत्य का बहिष्कार कर दो, भले कौन सी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो बहिष्कार जीवन में अधर्म कहलाता है। यानी प्रतिष्ठा अच्छी है, लेकिन प्रतिष्ठा हो फिर भी जहां सत्य हो तो सत्य का स्वीकार करना चाहिए। बाद में एक मोह होता है सत्ता का मोह। सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन फिर भी जो आ जाती है उसके बाद उसका मोह लग जाता है। और सत्ता का मोह ऐसे लगता है कि एक बार सत्ता है, बाद में वो सत्ता से कोई तृप्त नहीं होता, सत्ता के सब भूखे ही बन जाते हैं। सत्ता लेते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा को ही सत्ता बना देते हैं, और वो सत्ता में पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए बाद में जो न करना पड़े वो सब भी होता है। अप्रामाणिक रूप से भी सत्ता स्थापी जाती है। सत्ता छोड़नी न पड़े उसके लिए साम दाम दंड और भेद सब सत्ता के लिए होते हैं। सत्ता के लिए हिंसा हो जाती है। अब सोचिए कि सत्ता अच्छी है, सत्ता का उपयोग सेवा से हो तो,
आज जो चुनाव में जीत के मंत्री बनते हैं, अच्छा है, मंत्री बनने के बाद आपके पास सत्ता है, उसका सेवा के रूप में उपयोग हो। लेकिन सत्ता का उपयोग सामर्थ्य बनाने में हो जाए और वही सत्ता हमेशा मेरे पास रहे, वो सत्ता को संभालने के लिए जहां साम दाम दंड भेद रचा जाए, वो सत्ता सबके विनाश का कारण बन जाती है। और इसीलिए शायद हमारे लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद सत्ता बदलने का एक रूल्स है कि दर 5 વર્ષ થાય એટલે ઇલેક્શન આવે એટલે બદલી કાઢો। બદલવા માટે કેમ કીધું કે કાયમ માટે જો બેસશે તો સત્તાનો મોહ લાગશે, એના કરતાં રોટેશન બદલી કાઢો, બીજાને આપી દો। और वो सत्ता न बदली जाए इसीलिए इलेक्शन होता है, पैसे दिए जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं। और हम भी वही करते हैं, जो ज़्यादा पैसा दे, ज़्यादा पिलाए, वो योग्य हो ना हो, बाद में उसी को वोट दे देते। तो लोकतंत्र में भी नियम है, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता का परिवर्तन न हुआ तो वो सत्ता स्थायी हो गई तो समझ लीजिए वहाँ षड्यंत्र पैदा हो जाएगा, वहाँ दमन चालू हो जाएगा। और जहाँ दमन होने लगेगा वहाँ सबके जीवन नरक के समान बन जाएंगे। इसीलिए सत्ता का मोह सबको है, सत्ता होनी ही चाहिए, बिना सत्ता से सेवा मुश्किल है। लेकिन जब सत्ता मिले तो उसका उपयोग मोह से नहीं, सेवा से किया जाना चाहिए। बाद में एक होता है जीवन का मोह। हम सबको जीवन का मोह है, सबको जीवन चाहिए। हमारे जीवन के मोह के लिए हम किसी के भी जीवन को डुबा सकते हैं। जीवन का मोह, खुद जीना है लेकिन भोग विलास से जीना है। हाँ, जीवन का मोह अच्छा है, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए किसी और के जीवन को मार देना, ये जीवन का मोह खराब है। कई बार जीवन का मोह ऐसा हो जाता है कि उसी जीवन के मोह के कारण हम सबके जीवन में आपत्तियां भी पैदा होती है। तो जीवन का मोह हमें जीना है। इस जीवन के मोह, जीवन सबको जीना चाहिए, लेकिन किसी को मारते हुए नहीं। आज आप देखिए ना कि हम नॉनवेज खाते हैं, ये क्या है? हमारा जीवन का मोह। हम खाना चाहते, खाएंगे तो जिएंगे। खाने के लिए बहुत कुछ भगवान ने बनाया है, फिर भी नहीं, पशुओं को खाएंगे। एक बार मैं किसी एक जगह पे बैठा था, जब मैं कोर्ट में जाता था तो वकील बार में भी बैठा था। तो वकील बार में उस समय पे ईद का समय था, तो एक मुस्लिम एडवोकेट वो मेरे साथ भी बैठे थे। तो ऐसी बात हुई कि भाई आप ये बकरे को क्यों काटा जाता है, क्या ज़रूरत है, ऐसे नहीं करे तो नहीं चलेगा। तो बोले नहीं करे तो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन वो तो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? मैं बोला किसी को मारना और खाना क्यों ज़रूरी? नहीं ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बस्ती बढ़ जाएगी तो हम कैसे जिएंगे। और जो आई बात करी तो मैं पूछ जो ये लोग को तुमने कैसे, उनकी बस्ती बढ़ जाएगी तो हम कैसे जिएंगे, उससे अच्छा मार देना तो हम तो जी पाए। हमारा खाना तो वो लोग ही खा जाते हैं, बकरे ही हमारा खाना खा जाते हैं। अगर इतने सब पशु बढ़ जाएंगे, पशु ही खाना खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम कैसे जिएंगे? तो हमारे जीवन के लिए उसका खत्म कर डालो, उसको एक धार्मिक रीति रिवाज से लेके आए। हमारे में भी बलि प्रथा है ना, बलि प्रथा क्या है? धार्मिक रीति रिवाज बन गया। ये धार्मिक रीति रिवाज है ही नहीं, बलि चढ़ाने की कोई प्रथा ही नहीं। कोई તમને એમ કે લાવો એક મરઘો આપણે ચડાવી દઈએ, કામ થઈ જાય, આવી રીતના કોઈ દડો કામ નહીં થાય। એ જે કરવામાં આવે છે આ પાપ છે, અને તમે જો એ કરતા હોય તો એ તમે પાપના ભાગીદાર છો। એટલે કોઈ આવું કરતું હોય અને ગુરુ દરબારમાં આવતું હોય તો છોડી દેજો, પાપના ભાગીદાર તમે કેવા છો। કોઈ પશુને મારીને તમારા જીવનની રક્ષા થતી નથી। ઘણા લોકો એવા હોય કે એકદમ છેલ્લી કક્ષા આવી ગયા તો એ બાધા માની લીધી, એમ કે એક મરઘો ચડાવી દેવું, તમે બચવાના ને મારી નાખવાના મરઘાને તમે। હવે તમે વિચાર કરો, પાછા કે એ તો એમ કે એને મુક્તિ મળે। મુક્તિ આપવાનો અધિકાર આપણો નથી, કોઈને મૃત્યુ આપવાનો પણ અધિકાર આપણો નથી। મુક્તિ અને મૃત્યુ એ તો ભગવાને નક્કી કર્યા છે। लेकिन जीवन का मोह दूसरों के जीवन को मार देता है। आप देखिए, जीवन मिला है सबके साथ जीने के लिए,
लेकिन कई ऐसे हो गए जिसने जीवन के मोह को त्यजा, और ऐसे जीवन के मोह को त्यजा जहां राष्ट्र भावना पैदा हुई। आप देखिए भगत सिंह फांसी के ऊपर चढ़ गए, क्यों? उन्हें जीवन का मोह नहीं था। वो अगर चाहते तो जेल तोड़ के भाग सकते थे, लेकिन नहीं, जीवन का मोह हमने छोड़ दिया। अगर हम शहीद हो जाएंगे तो हमारे पीछे इतने शहीद होने वाले आएंगे कि ये लोग हमारी लाश उठाते उठाते थक जाएंगे और भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ये सोच थी क्रांतिकारियों की कि हम मर जाएंगे, मारेंगे, मरेंगे, लेकिन हमको मरता हुआ देख अगर 4 और मरने के लिए पैदा हो गए तो कब तक ये लोग फांसी पे चढ़ाते रहेंगे। ये सोच थी। दूसरों को सिखाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उस बलिदान में राष्ट्र सेवा की। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र, उनको कहा गया धर्म परिवर्तन करो। बादशाह ने कहा कि धर्म परिवर्तन करो। दोनों बच्चे थे, एक बड़ा था एक छोटा था। दोनों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे धर्म परिवर्तन। अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो जिंदा गाड़ दिए जाओगे। शायद एक की उम्र कुछ 12 साल थी और एक की उम्र 10 साल थी। दोनों को जिंदा गाड़ दिया जाएगा। दोनों ने नहीं माना, नहीं करेंगे। ठीक है, जिंदा गाड़ दिया जाए। दोनों को जिंदा गाड़ने लगे तो जो छोटा था वो जोर जोर से रोने लगा। तो बादशाह ने कहा कि तुम क्यों रोते हो? मरने के डर से घबरा गए? धर्म परिवर्तन कर। तब उसने जवाब दिया कि मैं मरने के डर से नहीं रो रहा, मैं दुख से रो रहा हूं कि मैं 2 साल छोटा हूं। मैं 2 साल छोटा हूं, इसलिए मेरी जो हाइट है वो थोड़ी कम है और इसकी थोड़ी ज़्यादा है। मैं 2 साल बाद में जन्मा, अगर 2 साल पहले जन्मा होता तो मरने का अधिकार सबसे पहले मुझे मिलता था। अब आप देखिए कि छोटे बच्चे में जीवन के मोह को त्याग दिया कि मर जाऊंगा लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं होने दूंगा। और जहां धर्म का परिवर्तन न होने के लिए वो लोग मरे, वहां ही आप देखिए कि धर्म सुरक्षित रहा। बलिदान दे के धर्म को सुरक्षित किया गया। क्यों? छोटे बच्चे में जीने की इच्छा नहीं होती, फिर भी जीवन के मोह को त्याग दिया कि हमारे जीवन का मोह त्याग देंगे लेकिन धर्म को बदलेंगे नहीं। हमारा धर्म मरने के बाद भी सुरक्षित रहेगा। आप देखिए, અને આજે ધર્મ પરિવર્તન થાય એ જ હું તે દિવસે ડાંગમાં કીધું કે એક એક મંદિરની સામે એક એક મિશનરી ઊભી થાય, એ કંઈ ભગવાનને ભજવા માટે નથી થતી, તમારા ને મારા જેવાને માટે ધર્મ પરિવર્તન થાય છે. આ ધર્મ પરિવર્તન આવા જ વિસ્તારમાં વધારે થાય. દરેક જણા સશક્ત બનો અને ભલે ને 10 મિશનરીઓ ઊભી કરવા દો, પણ આપણે જરૂર શું છે ત્યાં જવાની? તમને કોઈ વસ્તુની જરૂર હોય તો તમે અહીંયા આવો. હું તો કહું છું આશ્રમમાં આવજો, જે જરૂરત હશે તે પૂરી કરશું. પણ આપણો કોઈ પણ સંપ્રદાયનો વ્યક્તિ હોય એનું ધર્મ પરિવર્તન થવું જોઈએ નહીં. અને જો આ ધર્મ પરિવર્તન થતું હોય તો હું તો એમ કહું છું કે લડત આપો, ત્યાં જઈને ઊભા રહી જાઓ, ત્યાં લડત આપો. અને એ લડત આપતા આપતા આગું પાછું થવું પડે, બે બે હાથની કરવી પડે તો કરજો, પણ આ ધર્મ પરિવર્તન આપણામાં થવું જોઈએ નહીં. અટકાવો ધર્મ પરિવર્તન. ધર્મ પરિવર્તન થશે, નષ્ટ થઈ જશે બધું. जीवन के मोह से, जीवन के मोह का त्याग कर दिया, अपने धर्म को सुरक्षित किया. तो सबसे बड़ा मोह होता है जीवन का मोह. जीवन का मोह अच्छा, लेकिन जीवन सबके साथ जीने के लिए वो मोह चाहिए. तो एक मोह जीवन, एक मोह होता है वस्तु का मोह, कि अगर किसी के पास कोई वस्तु देखी, उसका मोह लग गया तो वो वस्तु मुझे मिलनी चाहिए. वो वस्तु जब तक मुझे मिलेगी नहीं, कैसे करके भी मैं वस्तु में लेके रहूँगा. और वो वस्तु जहाँ लेने की बात आ गई, वहाँ दमन शुरू हो गया, वहाँ अत्याचार शुरू हो. तो वस्तु का भी हमें जीवन में मोह होता है. वहाँ चोरी होती है, वहाँ लूटपाट होती है कि ये वस्तु मुझे चाहिए. वस्तु का मोह. कामधेनु गाय थी, कामधेनु को छोड़िए, नवनाथ चरित्र में आप देखिए कामधेनु गाय जो थी, वो कामधेनु गाय की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों के आश्रमों को ध्वंस किया गया. सहस्त्राल अर्जुन, कामधेनु की गाय को लेने के लिए
ऋषि मुनि के आश्रम को ध्वंस किया गया और गाय लेके चले गए। परशुराम ने आया और परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया। तो किसी वस्तु का मोह जब हमें लग जाए तो वह वस्तु की प्राप्ति के लिए हम जो रास्ता उपयोग करना है वो करते हैं, जो पापाचार कहलाता है। चोरी होती है। चोरी क्यों होती? चोरी इसीलिए होती है, वस्तु का मोह। તમે હારો મોબાઈલ લઈ ગયા, કોઈ તમારો મોબાઈલ ચોરી જાય, વસ્તુનો મોહ। તમારા આજો તમે બજારમાં જાઓ તો આ ચેન ખેંચવાવાળા આવે, આપણે મહેનતે વસાવી હોય, ગળામાં પહેરતા હોય અને આવીને ખેંચી જાય, આ શું છે? વસ્તુનો મોહ। કે આ વસ્તુને અમે ખેંચીને વેચી કાઢશું, પૈસા આવશે, वस्तु मोह। और वस्तु का मोह अच्छा है, लेकिन वो वस्तु किसी के काम आए। लेकिन वस्तु का मोह छीनने के लिए हो, अपने लिए हो, तो ये मोह योग्य नहीं है। तो एक होता है वस्तु का मोह, एक होता है प्रतिष्ठा का मोह। काम मोह, धन मोह, परिवार मोह, प्रतिष्ठा मोह, वस्तु का मोह, जीवन का मोह। बाद में होता है संपत्ति का मोह, कि ये जो सब आपने बसाया है ये मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा बसाऊं, मेरा ही रहे, ये संपत्ति का मोह। और संपत्ति का जहाँ मोह हो जाता है वहाँ ये संपत्ति किसी के काम नहीं लगती। हमें भगवान ने जितना दिया है उससे ज़्यादा संपत्ति मिले, ज़्यादा संपत्ति बनाए, समय आने पे बेचे और पैसा करे। संपत्ति, आपकी संपत्ति किसी के काम आए तो ठीक, लेकिन काम ना आए तो क्या? पहले के राजा महाराजाओं को दान करने के लिए बुला गया था, भूमि का दान करो। क्यों? इतनी भूमि आपके पास है, किसी किसान को भूमि देंगे तो वो किसान उसमें अनाज बोएगा, खुद खाएगा, दूसरों को खिलाएगा। गौदान, संपत्ति, कि गायों को दान किया जाए, गायों का दान होगा तो संवर्धन होगा, गाय संवर्धन होगा तो दूध, दही, माखन ये सब आएगा, और गाय के संवर्धन से हमारी तंदुरुस्ती बनेगी, पर्यावरण पैदा होगा। तो ये जितनी भी संपत्तियाँ थी, आज संपत्ति का हम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं, और बाद में होता क्या है? यही प्रॉपर्टी को पाने के लिए बाद में विवाद पैदा होता। तो प्रॉपर्टी ऐसी पाई जाए जिसमें सबको फायदा हो। तो एक मोह होता है संपत्ति का मोह, एक मोह होता है मत मोह। मत यानी हठ मोह, कि मैं जो बोलूं वही सच है, मेरे धर्म में जो लिखा है वही सच है, हमने जो कहा वही योग्य है, मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूं, मैंने कह दिया, इससे आगे कुछ नहीं। ऐसे मोह पहले भी होते थे, और वहाँ वाद विवाद जहाँ होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, वहाँ वाद विवाद होते थे, और उसी समय पे मान अपमान भी होते थे। किसी को नीचा बताया जाता था, किसी को ऊंचा बताया जाता था। और मेरे ज्ञान में जो आता है यही सही है, मेरा धर्म है सही, बाकी के सब झूठ। ये जहाँ आता है उसे कहा जाता है मद मतांत मोह, हठ का मोह। आज आप नहीं देख रहे, थोड़े समय पहले ही चल नहीं रहा था कि मस्जिद में अजान पुकारी जाए, ऐसा कोई नियम है ही नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्पीकर में ही पुकारी जाए। दिन में 5 समय स्पीकर पे पुकारना आपका हठाग्रह हमारे धर्म में लिखा है, और हम अजान भगवान को याद करने के लिए पुकारते हैं। लेकिन आप जहाँ पुकारते हो वहाँ दूसरों को तकलीफ होती है, तो ऐसा कोई धर्म नहीं जो दूसरों को तकलीफ दे। हम भी हमारे मंदिरों में उत्सव मनाते हैं, लेकिन 9 दिन नवरात्रि के ख़त्म हो गए, बाद में वो सब बंद हो जाता है। नहीं, लेकिन हमारे धर्म में तो स्पीकर, लाउड स्पीकर रखे हैं। किसी भी धर्म में ये अलाउ नहीं है। आप फॉरेन में चले जाओ, आपकी आवाज़ सिर्फ हॉल में रहेगी, हॉल के बाहर जाएगी भी नहीं, और जाए तो वहाँ दंड हो जाता है। तो फॉरेन में तो स्पीकर नहीं रखे जाते, लेकिन हमारे धर्म में ये है, इसीलिए ये चाहिए। आप मानो या ना मानो, हम तो करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? मोह। हमारा धर्म सही है, दूसरों का गलत, ये मोह। ये जो धर्म आया, ये धर्म रेगिस्तान से आया हुआ धर्म है। रेगिस्तान में रेत फैली है, बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं, और किसी बात का ऐलान करना हो तो हर एक के घर में जाया नहीं जा सकता। इसीलिए स्पीकर लगाए जाते थे कि वहाँ से किसी को बुलाया जाए, अजान हो तो सबको पता चले कि ये नमाज का टाइम हो गया, और इसीलिए ये अजान लगाई जाती थी उस समय पे। रेगिस्तान से आया हुआ धर्म है, लेकिन यही रीत
हम सब में भी हम हर जगह जहाँ मस्जिद बनी वहाँ चालू हो गई। तो ये ऐसा हठाग्रह जो दूसरों के धर्म को मना कहे और खुद के धर्म को ही कहे कि हमारा धर्म योग्य है, ऐसे शास्त्रों में भी मत मतांत होते हैं कि हमने जो कहा ये ठीक, भगवान को पाने के लिए है, यही प्रथा है। हम जो मन भावन है, जिस मन से भगवान को मानो वो हो जाता है, नहीं, लेकिन मैंने कहा उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति होगी। ये क्या है? ये मत मतांतर। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसी अनेक पद्धतियाँ पड़ी है, इसीलिए अलग अलग संप्रदाय बन गए हमारे। तो एक होता है मत मतांत मोह, दूसरा होता है यौवन का मोह। हमारे यौवन का सबको मोह है, और यौवन का मोह है, जरूरी है कि यौवन को अच्छा रखा जाए, लेकिन यौवन का मोह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां आप सेवा करने के लिए जाओ और आप बोले कि नहीं नहीं मेरा शरीर बिगड़ेगा। गणायवा नहीं हो कि हम पीरसવાનું આવે, ચાલો ભાઈ પીરસો, નહીં આજે નહીં પીરસવાના, કેમ? મારો ઇન્સર્ટ નીકળી જાય તો, એમ નહીં આજે નહીં પીરસવાના, બહુ ગરમી છે, મારો મેકઅપ ઉતરી જાય તો, આજે નહીં પીરસવાના કે પાણી પીરસવા એમ કે કપડા એમ કે ભીના થઈ જાય તો, બહુ મોંઘો એમ કે આ કંઈ બગડી ગયું તો એમ કે બહુ મોંઘો શર્ટ છે, બહુ મોંઘી સાડી છે, હવે તમે સેવા કરવા સારું તમારા શરીર જ જોયા કરવાના, તો સેવા કઈ રીતે થવાની? સેવક જે પણ હોય એને શરીરનો મોહ નહીં હોય। ભર તડકો હોય ને તો ભર તડકામાં બી એ ધર્મની સેવા કરવા માટે ઉતરી પડવો જોઈએ। ના ના, પણ અમારું શરીર, કપડાં બગડે, અમારી ત્વચા બગડે, અમારું આમ થાય, અમારું તેમ થાય, સેવા તો કરીએ પણ સારું એમ કે થાય જ નહીં, એમ કે આ શરીર બહુ દુખે બહુ, આ બધા બહાના છે। શરીર દુખતું હોય તો દવા લેવાની અને પેરાસિટામોલ લઈને કામ કરવાનું। તમારા ઘરે કરો કે નહીં? તમારા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે ને, તમારો પતિ કે 2 કપ ચા બનાવો, તો માથું દુખતું હોય તો બી જખ મારીને બનાવો કે નહીં બનાવો? તમે તમારે ત્યાં લગ્ન હોય ત્યારે તમે દોડધામ કરીને કરો કે નહીં? હા, પણ અહીંયા કરવાનું તે નહીં, આજે તબિયત નથી સારી, આજે કપડાં બગડી જશે, આજે આમ નથી, આજે તેમ નથી, આ બધા મોહ। ये जो भी मोह है यौवन के मोह। महात्मा गांधी ने समाज की सेवा की, अपने शरीर को नहीं देखा। बाबा साहेब आम्बेडकर ने की, अपने जीवन को नहीं देखा। ऐसे ऐसे जितने महानुभावों ने राष्ट्र की, देश की सेवा की, भगवान बुद्ध ने बहुजन हित के लिए सेवा की, जिनको दलित मान के छोड़ दिया जाता था उनको अपनाया, जंगल में जाके रहे, वहाँ अपने शरीर की चिंता नहीं की। तो एक मोह होता है शरीर का। शरीर का मोह अच्छा है तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन जहाँ सेवा करनी हो वहाँ उस मोह को छोड़ना जरूरी है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के मोह हमारे जीवन में होते हैं। ऐसे जितने भी मोह होते हैं, एक मोह होता है अहंकार, कि मुझे मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मैं जो बोलूँ वही हो, मुझे सम्मान मिले। सम्मान का भी मोह होता है, और जहाँ सम्मान न मिले वहाँ उसे अपमान लगता है, और जहाँ अपमान लगे वहाँ क्या होता है? जहाँ अपमान मिले वहाँ दोनों में मतभेद और मनभेद हो जाते हैं, और उसी से बाद में आगे देखिए तो संबंध वहाँ टूटते हैं। यानी सम्मान प्रोटोकॉल के हिसाब से हो, लेकिन अतिशय सम्मान की अपेक्षा ये भी जीवन का एक मोह है। और मोहिनी एकादशी हमारे सभी मोह को नष्ट करती है। ये जितने 11 मोह है, ये 11 मोह, एकादशी यानी 11, हमारे जीवन के 11 मोह को जो नष्ट कर दे वो होती है मोहिनी एकादशी। काम मोह, धन मोह, परिवार मोह, प्रतिष्ठा मोह, जीवन मोह, वस्तु का मोह, सत्ता का मोह, हठ, हमारे भीतर में जो हठ है वो हठ का मोह, हमारे यौवन का मोह, हमारे अहंकार का मोह, और एक अंतिम मोह व्यसन का मोह, कि सबको व्यसन लग जाता है, लगने के बाद व्यसन का मोह हो जाता है। दारू हो ठीक है, दवा के रूप से लिया जाए, लेकिन बाद में जब मन भ्रमित हो जाता है और उसी से उत्तेजना वो प्राप्त करने लगता है, तो वही दारू पीने से घर की परिस्थितियां बिगड़ती है, यही दारू पीने से घर में कलह पैदा होता है, और यही दारू आपके जीवन को नष्ट कर देता है। दारू हो, सिगरेट हो, ये जितने भी व्यसन है, ये व्यसन का भी मोह होता है। इसलिए आप देखिए
कि आप कहीं भी चले जाओ, आपका पाकिट भूल जाएंगे, लेकिन चूना तंबाकू खाने वाले अपने चूना तंबाकू कभी नहीं भूलेंगे। તમે ઘરેથી નીકળો ને, ટ્રેનમાં બેહો તો તમારું તંબાકુ તમારી પાસે હોય જ. હા, એકવાર તમે પાકીટ ભૂલી જાઓ, એકવાર તમે બીજું વસ્તુ ભૂલી જાઓ, પણ પેલા ચૂનાની પેલી ટ્યુબ અને પેલો ચૂનો એ તંબાકુ એ તમે નહીં ભૂલો. દારૂ પીવાવાળો બધું ભૂલી જાય, પણ પોતાનું દારૂ હાચવીને ઘરમાં મૂકી રાખે. જોજો તમે ફેંકી દો ને તો એ ગમે ત્યાં કબાટમાં કે ગમે ત્યાં રાખેલું હોય એણે, પણ એ ભૂલે નહીં. આ એનો મોહ. આપણે અહીંયા તો એવું નથી થતું, પણ ઘણી જગ્યાએ કથાઓમાં એવું થાય કે સત્સંગમાં બેઠેલા હોય, કથા સાંભળે અને પછી પેલી તલબ બીડી નહીં લાગે ને એટલે બહાર જાય ને દૂર ગઈને પી આવે ને પાછા આવીને બેસી. આ શું છે? તો ચાલુ કથામાં બીડીનો મોહ લાગ્યો. એ બીડીનો મોહે તમને કથા છોડાવી, ત્યાં દૂર લઈ ગયા, ત્યાં પીધી અને પાછી આવી. આ કેવો મોહ કે જે ભગવાનના નામથી તમને દૂર લઈ જાય? દારૂનો કેવો મોહ કે જેમાં મારપીટ થાય તમારા ઘરમાં અને તમારા ઘરનું અર્થતંત્ર બેસી જાય. तो इसे कहते हैं व्यसन का मोह. एकादशी करने से ये 11 मोह से हमें मुक्ति मिलती है. ये 11 मोह जहाँ मुक्त हो जाए, वहाँ हम भगवान के समीप स्वयं पहुँच जाते हैं, या भगवान हमारे समीप स्वयं आते हैं, और वहाँ ही हमारी उपासना सार्थक होती है. तो इस 11 प्रकार के मोह को जो मुक्त करे वो होती है मोहिनी एकादशी. फरी ये 11 मोह मैं बोल रहा हूँ. पहला मोह काम मोह, धन मोह, प्रतिष्ठा मोह, परिवार मोह, जीवन का मोह, सत्ता का मोह, वस्तु का मोह, हठाग्र मोह, यौवन का मोह, अहंकार का मोह, सम्मान का मोह और व्यसन का मोह. ये 11 मोह से जो हमें मुक्त करे और परमात्मा के समीप ले जाए, विष्णु के समीप ले जाए, जहाँ विष्णु स्वयं हम पे कृपा करे, ऐसे 11 मोह को मुक्त करने वाली एकादशी, ये एकादशी मोहिनी एकादशी कही जाती है. इसलिए आप उपवास करो या न करो, माला करो या न करो, लेकिन आज के दिन भगवान का नाम स्मरण करते हुए अगर आपका दिन बीते तो समझ लीजिए कि आपके 11 मोह जो हमें पुनरूपी जन्मम और पुनरूपी मरणम के कारणभूत है, हमारे दुख के कारणभूत है, हमारे जीवन के कलह के कारणभूत है, इन सभी मोह से हमें मुक्त करे. ये 11 मोह जहाँ मुक्त हो जाए उसे कहते हैं मोहिनी एकादशी. तो आओ हम सब मिल के गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि 11 प्रकार के मोह मोहिनी एकादशी के दिन मुक्त हो जाए. हमें मोह नहीं, हमें भगवान से प्रेम लगे, हमें प्रत्येक जीव से प्रेम लगे और प्रेम से हम सबके साथ व्यवहार करें, आदान प्रदान करें. ऐसी हमें कृपा दीजिए. ये मोहिनी एकादशी के दिन हम भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रार्थना करते हैं. गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंगकारीफ मच्छेन्द्राज्य चौरंगी देवाणक बर्तुवरी सज्ञा भूम्यांब बुर्ननाथ सिद्ध. जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ. स्वामीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय. શિલાન્યાસનો કાર્યક્રમ બહુ વ્યવસ્થિત થયો. મોટે ભાગના ભક્તોએ હાજરી આપી અને તન મન ધનથી બધાએ સહયોગ આપ્યો. તો આ રીતે ગોરખમચેન્દર મંદિરનું નિર્માણ થાય છે. તમે જે રીતે સહાય આપવા કરતા હોય, મદદરૂપ થવા માંગતા હોય, તમે થઈ શકો છો. શિલાન્યાસ કાર્યક્રમના દિવસે ભંડારો
પાર્વતીબેન અમૃતભાઈ પટેલ એટલે આપણા અમૃત કાકા રાનવેરીવાળા, જેઓ ગુરુલીન થઈ ગયા 1 વર્ષ પહેલાં, તો એમના સ્મરણાર્થે એમના ધર્મપત્ની પાર્વતીબેને રાનવેરી ખુર્દથી આ ભંડારો કરેલો અને એમના સ્મરણમાં આ ભંડારો ત્યાં કરવામાં આવ્યો. એમનો પણ ભંડારામાં યોગદાન હતું. નીરજભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ મગદલ્લા, એમનું ભંડારામાં યોગદાન. ભૂપેન્દ્રભાઈ મિસ્ત્રી છાસ માટેનું યોગદાન. રામજીભાઈ ગામિત, એમનું ભંડારામાં યોગદાન હતું. પ્રીતલ અરવિંદભાઈ પટેલના સ્મરણાર્થે શાકભાજીનું યોગદાન હતું. વેડશી સત્સંગ મંડળ તરફથી પણ યોગદાન હતું અને જયાબેન ડાયાભાઈ પટેલ તરફથી પાણીનું યોગદાન હતું. તો બધાએ ભેગા થઈને આ યોગદાનનો ભંડારો આપ્યો શિલાન્યાસમાં. તો આ તમામના પરિવારને ગુરુકૃપા મળે, ભગવાન વિષ્ણુની કૃપા થાય અને આવા કાર્યોમાં સૌભાગી રહે એવી એમના માટે પ્રાર્થના કરું છું. આજનો ભંડારો નયનભાઈ પ્રવીણભાઈ ગોલતકર નવસારી, એમના તરફથી છે. આજના ભંડારામાં દાળ, ભાત, રીંગણ બટાકાનું શાક, ટામેટાનું શાક, છાશ, લાપસી અને કેરીનું અઠાણું છે. તો આજનો ભંડારો નયનભાઈએ એમના સુપુત્રના જન્મદિવસ નિમિત્તે કરેલો છે. તો એમને પણ ભરપૂર આશીર્વાદ મળે, જીવનમાંથી તમામ પ્રકારના મોહ નષ્ટ થાય, ભક્તિભાવનો મોહ એમના જીવનમાં અવિરત રહે એવી પ્રાર્થના એમના પરિવાર માટે પણ હું કરું છું. હવે પછીના શનિવારથી એટલે 14 તારીખથી પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચન તમે યુટ્યુબ ઉપર સાંભળી શકશો. શ્રી સાનેનાથ બાની. બપોરના ટાઈમ કેટલો છે આપણો? 3:15. શનિ અને રવિ હવેથી બપોરે 3:15 વાગે તમારે દરેક જણાએ તમારું યુટ્યુબ ચાલુ કરવાનું. એ યુટ્યુબ ઉપર દાદાશ્રીના પોતાના અવાજમાં જૂના પ્રવચનો શરૂ થશે. 10-15 મિનિટ તમને સાંભળવા મળશે. બીજા દિવસે પાછું અઠવાડિયામાં શનિ રવિ 2 વાર બપોરે 3:15 વાગે તમારે પ્રવચન ચાલુ કરવાના. બધાએ સાંભળવાના અને પ્રવચન સંભળાઈ જાય પછી બધાએ કોમેન્ટ કરવાની કે ગુરુદેવનો અવાજ સાંભળીને તમને કેવો અનુભવ થયો. ખાલી જય અવધૂત નહીં લખ્યા કરવાનું. તમને બધાને પેલા પોપટ રામ રામ બોલે ને તમને એક જ આવડી ગયેલો જય અવધૂત, જય અવધૂત, જય અવધૂત. હા, સાંભળીને જૂના થઈ ગયા. હવે દાદાનો અવાજ સાંભળીને તમને શું થાય છે? ગુરુદેવનો અવાજ આટલા વર્ષો પછી તમારા કાને પડે તો તમને કેવો અનુભવ થયો એમાં લખો. દુનિયાને વાંચવા દો કે અમારા ગુરુદેવનો અવાજ સાંભળીને આજે અમે શું અનુભૂતિ કરીએ છીએ. એ પ્રવચનમાં જો તમે કંઈ સાંભળ્યું હોય ને તો એ લખો કે દાદા આટલા વર્ષો પહેલાં પ્રવચનમાં આજે બોલેલા, આજે અમને આ અનુભવ થાય છે. અને હું તો કહું છું કે દાદા અને છોટે દાદાના પ્રવચનને તમે કમ્પેર કરો કે દાદા જે બોલતા હતા અને છોટે દાદા બોલે છે એમાં કોઈ ફરક નથી. બધી વસ્તુ તમને સરખી જ મળશે. બધું તમે ધ્યાનથી સાંભળજો, તમને બધું સરખું મળશે. દરેક વસ્તુની અંદર તમે જુઓ. હા, પછી ભેદ કરવા માટે તમે જોવાના હોય તો બધા બહુ ભેદ દેખાશે. પછી દાદાની દાઢીની હતી એમ કે તમારી દાઢી છે, આ બી ભેદ છે ને. આ બી તમને ભેદ દેખાય. દાદા ટોપી પહેરતા, તમે નથી પહેરતા, તમે વાળ વધારી દીધા, આ બી ભેદ. દાદા ઓછું ખીજવાતા, તમે વધારે ખીજવાઓ છો, આ બી ભેદ. આવા બધા સાંસારિક ભેદ જો જોવા જશો ને તો હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા, તમે ભટકી જશો દરેક જગ્યા ઉપર. તમે એમાં અનુભવ કરો કે દાદાના પ્રવચનોનું તત્વ તમે જોજો. અને હમણાં પ્રવચનો થાય તમને બધી જગ્યા પર ડાયરેક્શન, બધી જગ્યા પર એક જ જતું જોવા મળશે. દાદાનો અવાજ સાંભળજો. દાદાનો અવાજ સાંભળીને શું અનુભૂતિ થાય તે કહેજો. દાદાએ કંઈ ધર્મની વાત કરી હોય ને આજે હું કરું છું એમાં કોઈ ફરક આવતો હોય તો એ કહેજો. ઘણું બધી વસ્તુ તમને અનુભવ થશે, સામ્યતા. હા, પછી તમે ભેદ કરવા માટે કરશો તો આ તો મોટી ખાઈ છે. ભેદ કરતાં કરતાં તમે એટલા પેલા સાપ સીડી છે, 99 પણ આવીને સાપ ગળી જશે તો એક પર આવી જશો પાછા તમે. એટલે જુઓ તમે કે 18 વર્ષો અને દાદાનો સમય મેં તો સાંભળ્યા જ નથી પ્રવચન. તમને કદાચ ખબર નહીં હશે, આ તમારા પ્રવચનો સાંભળવાના ચાલુ થશે ને બપોરે 3:15 વાગે હું પણ મોબાઈલ ચાલુ કરીશ, કારણ કે મારે પણ સાંભળવું છે, મારું બી બાકી જ છે બધું. તો આ બધી વસ્તુની સામ્યતા કે સ્વરૂપ બદલાઈ જાય પણ પરમ તત્વ કોઈ દિવસ બદલાતું નથી. એ બધી જગ્યા પર સરખું હોય. અનુભવ કરો, ગુરુવાણીનો અનુભવ કરો. તો આ અનુભવ હવે તમારે કરવાનો છે. બધાએ મોબાઈલમાં સબસ્ક્રાઈબ કરી જ દેવાનું
અને કોમેન્ટ દરેક જણાએ આપવાની. હા, પણ જય અવધૂતની આપજો, પણ એની નીચે બધું લખજો. પણ પાછા તમે જય અવધૂત કરો ને, હવે હું શોધવાનો છું કોણ કોણ લખે છે. હવે જય અવધૂત ખાલી અહીંયા બોલવા પૂરતું જ કરવાનું, કોઈ લખવાનું નહીં. જે વાંચ્યું, જે અનુભવ્યું, સાંભળ્યું એનો મહિમા લખવો જોઈએ. એવો મહિમા લખો કે નવો માણસ વાંચે તો થાય કે તમારી ગુરુ ભક્તિ કેટલી પ્રબળ છે, તમારા લખાણ પરથી ઓળખાવું જોઈએ. તો આ રીતે હવેના શનિ રવિથી બપોરે 3:15 વાગે બધા પ્રવચન સાંભળે. બીજી બાબત કે એક મહત્ત્વની જાહેરાત કરવાની છે, અને એ જાહેરાત એવી છે કે તમને બધાને એવું થશે કે હાસ હવે કંઈ દાદાએ બરાબર વાત કરી. અને એ જાહેરાત એક જ કે હવે પછીનો ગુરુવાર 19 તારીખનો સંકષ્ટીનો ગુરુવાર, ગણપતિ બાપ્પાનો ગુરુવાર, હવે પછીના ગુરુવારથી આપણા બધા ગુરુવાર ફરી પાછા સાંજે આપણે ચાલુ કરશું. જે પ્રમાણે કોરોનાના 2.25 વર્ષ પહેલાં આશ્રમમાં ગુરુવાર ચાલતા હતા, સાંજના સમયે ગુરુવાર ધમધકતા ચાલતા હતા, ભંડારા થતા હતા, પ્રવચનો કરતા હતો, ભજનો થતા હતા, તમે બધા મેળા થતો તેમ માણસો આવી રહેતા હતા. હવે બધાને છૂટ છે કે હવે પછીનો ગુરુવાર આપણે બધા સાંજે એક સાથે હોલમાં ભેગા મળીશું. ઈચ્છા હોય તો માસ્ક પહેરજો, નહીં પહેરો તો પણ વાંધો નહીં. હવે આ સેનેટરાઇઝ મશીન બધું ઉઠાવીને આપણે મૂકી દેવું છે. હા, સેનેટરાઇઝ આપણે કરીએ, એમાં અત્તર નાખશું. એટલે પહેલો ગુરુવાર છે ને, એટલે તમને બધાને અત્તરની હાથે હું અંદર લઈ આવું તમને બધાને. અને પહેલાં બેસતા હતા તેમ ખીચોખીચ બેસી જાઓ, અને તમે બધા ખીચોખીચ બેહો એટલે હવે મને તમારી હાથે બોલવાની પણ મજા આવે પછી. તો अब से अगले गुरुवार से हमारे गुरुवार रात्रि गुरुवार होंगे. सुबह जो भक्त आएंगे उन्हें दर्शन मिलेंगे, 12 बजे भोजन प्रसाद भी होगा, लेकिन प्रवचन रात को 8 बजे होगा. 5:30 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे, भोजन बाद में 8 बजे प्रवचन, और प्रवचन के बाद पुनः दर्शन और पुनः भोजन. तो इस प्रकार से अगले गुरुवार 19 तारीख से संकष्टी के गुरुवार से भगवान श्री गणपति की आराधना करते हुए हमारे शाम के गुरुवार का हम श्री गणेश करेंगे. तो अब से आप सब यहाँ गुरुवार पे शाम को आएंगे. बराबर? બધા તમે સાંજે આવો, નોકરી પતાવો ને સીધા અહીંયા આવો. તમારા માટે ગરમા ગરમ ભોજનની વ્યવસ્થા હું અહીંયા કરી મૂકીશ. પણ બધાએ હવેથી ગુરુવારે સાંજે આવવાનું છે. આ ગુરુવારે સાંજે આવવાનો નિર્ણય તમને બધાને ગમ્યો કે નહીં ગમ્યો? ગમ્યો ને? તો ફરજિયાત આવજો હવે બધા. અને ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરજો, ગણપતિ બાબા આ નારિયેળ ફોડીએ, હવે આ કોરોના નહીં જોઈએ ને હવે અમને કંઈ નહીં જોઈએ. બધાના ગુરુવાર આવતા ગુરુવારથી સાંજે. અને એનો ફાયદો મને બી છે કે આ સવારના ઉઠવાનું અને બપોર સુધી બોલવાનું મને ગરમીમાં મને બી કંટાળો આવે છે. પણ શું કરે, અહીંયા બેસે એટલે બોલાઈ જ જાય છે. પણ હું બી ઈચ્છું છું કે પહેલાંના જેમ સાંજનો ગુરુવાર આપણે ભેગા થઈએ. અને હું તો એમ કહું છું કે પહેલાં ગુરુવારે આપણે એવું જ કરવું છે કે કોરોનામાં તમે શું અનુભવ કર્યો તમે મને ત્યાંથી બોલો. હું તમને બધાને માઇક આપીશ. કોઈને કોરોના આવ્યો હોય ને તો કહેજો કે દાદા મને આવેલો પણ હું સારો થયો. કોઈને આવ્યો હોય તો કહેજો દાદા મને આવેલો પણ હું મરી ગયો, એમ બી કહેજો. પછી જે પહોંચી ગયા હોય તે બી બોલે. પણ પહેલો ગુરુવાર 19 તારીખનો આપણે બધાએ પ્રવચન, હું તો પ્રવચન નથી કરવાનો, પહેલા ગુરુવારે આપણે બધાએ જ વાતચીત કરવાની છે કે કોરોનામાં કેવી મજા આવી, કેવું દુઃખ પડ્યું, અને દુઃખ પડ્યું તો ગુરુ કૃપાએ તમને ક્યાં મદદ કરી આ બધા કહેજો. તમને આવતા ગુરુવાર માટેનું આ લેસન તમને આપું છું, કંઈ ને કંઈ લખી લાવજો. હું માઇક આપું ને એટલે તમે લખેલું બી વાંચી શકશો. પણ આવતા ગુરુવારે આપણે બધાએ ભેગા મળીને વાતચીત કરવાની છે. અને પછી આપણો ગુરુવાર સાંજનો થઈ ગયો છે તો શરૂઆત થશે. તો ગુરુવાર સાંજનો શરૂ થાય એ પહેલાં જ આપણે ગણપતિ બાપ્પાની જય બોલાવીએ. ગણપતિ બાપ્પા મંગલ મૂર્તિ, એકવાર સાને નાથ પંથ, એક વાર છોટે દાદા કી જય.